industry to work together to return to a sustainable growth path. As Honorable Prime Minister has highlighted, this is not achievable without
government and industry. To quote him, the private sector in India is a partner in ensuring India's growth. Develop concepts, think big, and together we can build a self-reliant investment, a new thought process, and out-of-the-box solution. The digital health mission announced by the Honorable Prime Minister will also be a big game changer, especially in terms of comprehensive care, and this will also empower our citizens to be responsible for their health. It will also, in my mind, become very useful when you look at non-communicable diseases. And the burden of disease has shifted now to more and more non-communicable diseases. And that is where digital health will actually be very, very useful. Preventive healthcare needs to become the new mantra, and I think we need to spend more and more investment and be more and more involved. I look forward to the key takeaways from each of the plenary sessions lined up today, and I'm sure all of you will have a very enriching experience and a wonderful day. I wish you all the best. Thank you. Namaste. Thank you, Dr. Guleda, for your address. May I now request Mr. Chandrajit Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry, to please deliver his address. Thank you. Good morning and welcome to everyone. It's really an honor and pleasure to see such a star-studded start to this India Healthcare Week, and I'm particularly honored to welcome Dr. Vardhan, the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Science and Technology and Health Sciences, as the chief guest for this very important function. Welcome, Dr. Vardhan. Great to see and indeed a pleasure to welcome Mr. Ashwini Kumar Chaubey, our Honorable Minister for State for the Ministry of Health and Family Welfare, and of course Mr. Vinod Paul, the member Niti Aayog, and we had a lovely opening address by Dr. Randeep Guleria, who is chairing the CII's Public Health Council, of course is well known as the Director of the All India Institute of Medical Sciences. So I just really wanted to salute in the beginning the huge work done by the leadership of this team, led by the Honorable Minister, in such challenging times that our country around the world has been going through. And for us, it is good to see such an assuring and a reassuring leadership we have from our ministers present here, and also the Team India, which has done such a each and everyone who has taken this huge burden of seeing to it that the country is kept safe and we are all in good shape, and we are able to fight these challenges. We are able to mitigate and navigate through this challenging times that we and it is always good to have such leadership and such types of delegations to prevent us from getting into a sort of a disaster. It's important to really understand the context as to how CII has got involved, and I thought I'll share Dr. Guleria on this matter of, and just as I thank the Honorable Minister for taking his valuable time, for being here at the inauguration of the CII Healthcare Week, which is a full week of work, and it is critical and of the medical emergency, the whole nation is today going through. It's a big signal to see that this leadership team of India is present here today, led by our Honorable Minister, to give us that assurance. As we go along, of course, we have the public health dimension today, followed by Ayurveda tomorrow, and day after the MedTech dimension. And it's fantastic to see the response that we have today. 700 odd people who are participating in this conference, along with 50 very critical, important exhibitors who are also virtually present. And there are 12 countries participating, and I think that's a very, very important data point for me. And so many sessions, with close to about 26 knowledge sessions, and different
even state governments, 5 states participating, which makes this healthcare week very wholesome in terms of the way we are going to approach and participate from the industry, from CII, in seeing how we are all in it together. For us in CII today, healthcare is an important issue. We have kept it in our primary focus areas of this year. We have kept it in our priority list, amongst others with education. But today, for the entire world, healthcare takes center stage. We have been faced with a challenging disaster of a kind, this pandemic, and therefore it is quite natural to have healthcare to be in the center stage. But we think in times to come, if we are able to contribute and participate under the directions and guidance of this leadership team as to how CII and its industry and its membership can collaborate and participate and partner in seeing that many challenges are actually well handled in the country through this in a partnership approach. In a vast country like India, it's not appropriate for us to always expect everything to be done by the government. So we would really expect a lot of participation and collaboration from many other stakeholders, and that's where we come in to see. Today we have this phenomenal team with government, the DT, a health provider with the leadership at AIMS and many others like them who are present here in this conference. The industry would like to see how it can bring in its own to it to see how we are able to contribute and work with you under the leadership of Team India to see how we are able to mitigate this challenge. We spread across the country with all our offices today at disposal. We would see that we are able to collaborate. Recent examples have been our seeing to it that the industry forms its own coalition to see that India can can manufacture a ventilator to a PPE, masks, etc. All of this, we had a huge amount of work which was done at our end in terms of over the last few months, including our foundation getting involved in seeing that people are taken. We could take care of our people. We could give a lot of care, or even in the aspects of sanitization. And there is an important role in that also for industry to be very, very careful. The industry to demonstrate leadership, and all of it is something that we have learned and worked upon in the last four and a half months. And the last 4 months have taught us many lessons, but we would like to bring to the fore all those lessons that we have learned to see that how our partnership would be meaningful as we work with our governments and certainly see that people of the country are taken care of. But once again, I would like to conclude by thanking Dr. Vardhan, Mr. Ashwini Kumar Chobe, for really participating with us today. That gives us the encouragement. That gives us a huge amount of satisfaction as to how we not only that we are in safe hands, but also that here is someone who is willing to listen to us, and also someone who would be able to tell us as to how they think that we can contribute in this challenging time. So with that, I'd like to once again thank for this phenomenal response and participation, and welcome all of you to this very important conference. Thank you very much. Thank you, Mr. Banerjee. May I now request Dr. Vinod Paul, Member Niti Aayog, to kindly deliver his address. Dear Science and Technology and Earth Sciences, respected Dr. Vardhan, Honorable Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Chobe, Mr. Chandrajit Banerjee, Professor Guleria, and distinguished colleagues, I congratulate you for the conference. I'm delighted to be a part of this conclave in difficult times. The fact remains that in these difficult times, the entire health sector, under the leadership of our Prime Minister, has come together to face this calamity and to come to a stage where the world community appreciates India's approach
I'm very appreciative of the fact that the private sector has risen to the occasion, and not just in the space of medical products and health products that have already been referred to, but also in providing care to the cases, to the patients suffering from COVID-19. It's a great achievement, and it shows that ultimately India's health sector is one sector, one integrated sector, public and private. We will continue to work together and we'll fight this battle together, and India will succeed. I'd like to take this opportunity to make 3 points. And those are more by way of our continuing effort for the medium and the long term. This also may be a time when we are in some way less occupied because a lot of our routine work is not happening, unfortunately. But it is therefore also a time for us to think through how to look at medium-term future and long-term future. And that discussion must go on even as we are fighting the COVID-19 on a daily basis. My 3 points are the following. First, the path-breaking Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has now matured and has served the people of India effectively. More than 1 crore procedures, admissions have been provided, and at a speed which is phenomenal. Of course, there is some decline in the usage and uptake of services as you would expect in this phase, which is unusual and unfortunate. But the fact remains that PMJ has been a historic development, a path-breaking, game-changing development in the health sector. When we look at how we have moved on, yes, a lot of lessons were learned, a lot of uptake happened, and it happened because the public and the private sector worked together. But I have concerns about the supply side of PMJ as we unfold further. If you look at how much participation of the private sector is, it is still confined to something like 12,000 hospitals. What is also of concern is large hospitals, bigger than, let's say, 300-bedded hospitals, are relatively few. We, under the leadership of our health minister, sir, should examine what we can do to increase the participation of the hospitals in general, but also to examine why the larger hospitals, in particular, that are the multi-specialty hospitals, and that is a special space for the needs of India, the tertiary care space in the secondary plus space. Why they have not come into our fold, and what is it that we can do collectively to get them into our fold so that PMJ becomes a stronger scheme. It has sufficient supplies, the maximum possible supplies, both from the public sector side as well as from the private sector side. And that is the way it should be, because this is the future umbrella scheme for universal health coverage for secondary and tertiary care. And therefore, sir, the time has come that we, through a process of dialogue, examine why this has not happened so far and why we cannot have another 20,000 private hospitals into the fold of PMJ. I request that we start that process systematically, and I also request the private sector. To please also accommodate. We have had issues about the reimbursements and so on, but remember that there is time for change, because the private sector is fashioned on business models which are in any case very variable. For the same medical service, the factor of payment may be 5x or 10x or even more at times. And therefore, and when a scheme is operating, it has to operate in a certain bandwidth of payment structure. And therefore, there has to be a way in such a form that as we move forward, we come together and we create a new health system, supply side health system, where the aspirations of the poor, aspirations of the middle classes, and aspirations of the higher classes of our country are taken care of. And this becomes then the mega ocean into which all the schemes merge, and we serve
mission in the best possible manner. So it's time for reflection, time for reviewing, and time to energize PMJ on the supply side. There are other issues, but I'm talking about the supply side. Even as we will push the public sector side to have increased capacities, increased quality, and increased level of services. My second point relates to augmentation of the health infrastructure per se. We just on ballpark figure, we need 1 lakh more beds, if not even more than that, to achieve 2 beds per 100,000 by the year 2025. We need to roughly double the number of beds. I think the speed with which these beds are rising is not sufficient, and we should examine how an impetus can be given to actual hardcore increase in the health infrastructure. What is holding us back? Is it investment? Is it laws? Is it incentives? Is it FDI? Let's talk about it, because there has been no progress, practically little progress in the last 2 years that we would have expected things to be moving in a positive direction. And under the leadership of the Honorable Health Minister, we would all work together to see how a huge impetus can be given, should be given, must be given to ensure that we have a large infrastructure that this nation deserves. And we have enunciated this in our national health policy. My third point relates to the role that the private sector and private health sector industry should play. And that relates to the fact that you have a great role to play in terms of training of specialists, training of doctors, training of high quality nurses. I think there is so much scope, because you have 6 lakh beds. And this is every bed is a learning ground for health professionals. Health professional learning does not happen in classroom, dry classroom. It happens on the bedside, in the hospital. So much more should be done by the private sector industry to train our doctors, train our specialists, and train nurses, particularly in the space of high-end nursing, specialized nursing. Again, this is something that we have talked from time to time, but I think a breakthrough is still awaiting. So, Mr. Banerjee, we must systematically look into how this has to be done. Have milestones towards this. Let CII take lead and demonstrate that this can happen. And in addition to the generic idea of participation for human resource development, allied professional life should have also mentioned acute scope. So we must come together in doing so. And when we do, it helps improving services in the private sector, hospitals themselves. And that's about quality. That's also about increased productivity. It is truly a win-win situation. And we must therefore examine why we have lackluster number of training opportunities, hardcore training opportunities in the private sector. Let me illustrate this by a number. 6 lakh beds are in the private sector. And together, through the NBE system, we get about 6,000 specialists trained each year. And then in the remaining system, which is the medical colleges, including private medical colleges, so some hospitals I'm counting on the other side, we have 45,000 specialists, more than 40,000 specialists. I think it will be 45,000 this year. So 40,000 vis-a-vis 6,000. Every bed that we have in this nation is a teaching bed. Every we have is for clinical care, and it's a teaching bed for the nurses and the doctors. I think we must understand this as a principle, and then find how we can do so much more. Let's say a major hospital chain in our country, which has, let's say, 4,000 beds, should be in a position to have 1,500 or let's say 1,000 DNB seats every year. Why that particular chain has only 80 seats or 120 seats? Why? This must change, and therefore I urge you that kindly embrace the National Board of Examination system in multiple ways, for DNB courses, for SND courses, and now you have a new opportunity. I'll talk about 3 opportunities. And this is the first one, that now this is a small nursing home, relatively less endowed. You can now do diploma courses, which are 2-year courses, where the requirements are less than the DNB courses. Could you please rise to the occasion? 8 such courses for the core broad specialties have been launched.
Our second opportunity is for your consultants to be visiting faculty to the district hospitals that are running MBE courses, as also the medical colleges where they can serve as visiting faculty to top up their work and to teach the students, to excite the students, and to be able to contribute in the best possible manner for the training of doctors in particular. Your third opportunity is that we have in the MCI way back now, almost way back, we have created a regulation in which not one, but two or three entities can come together to create a medical college system. So till that time, till before this particular option became available as a regulation, one entity only could create a medical college. That means it will be one company, one organization, one NGO, one society, which will have medical college, which will have a hospital, and which will also have, let's say, residential quarters. Everything in one entity. So several months ago, we came out with a regulation in which a consortium of two or three entities can come together. So you have a hospital, you join hands with somebody who is willing to invest in creating a medical college, and that may be a previous engineering college which is now not working. So that is your contribution. Running medical college, running hospital is the contribution of the second entity, and the third one can be a builder who just builds a residential area for hostels in a premises going 8 floors. Three of you can come together and create medical college. It hasn't happened. To my knowledge, there is only one application over this one year period. Why? I would request you to kindly think about giving impetus to these are the ideas we heard from you, but now they are not being used. And I request you to kindly let's talk about the specific things that would work beyond the generic. And I hope that will be one of the outcomes of the meeting. And the last one on education is under the stewardship and benevolence of our minister, Dr. Harshvardhan ji. We are at the cusp of having a fellowship scheme for the DNB candidates. It will be a scheme where DNB candidates will be given a stipend which will partly offset your spending on paying them the full stipend. So you will only contribute partly. We will come out with the details of this stipend once it is formally organized. But that's one stimulus that you wanted, and now it has seen progressive movement, and we are at a decision point. But you already know that this is something which the Honorable Finance Minister had hinted at, broadly hinted at in the budget speech. So that's a commitment of the government to give impetus to DNB programs in large hospitals, whether they are private or public sector. And here, because most of them, well, very many large hospitals belong to the private sector, obviously this is something which will give impetus to the educational work that you all can perform. My request is it's time that we think about specific ideas, specific milestones, specific commitments to take these processes forward. At the supply side for our Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, for creation of infrastructure, as well as using opportunities of the private sector for training of health professionals. We have expressed intent, but it is time for us to deliver on it. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Dr. Paul. May I now request our Honorable Minister of State, Health, Mr. Ashwini Kumar Chaubey, to kindly deliver his address. CII के द्वारा इस स्वास्थ्य परिचर्चा में भाग ले रहे हमारे आदरणीय लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में यहाँ वर्चुअल रूप से उपस्थित आदरणीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, साथ ही यहाँ सदस्य नीति आयोग के जो सदस्य हैं और एमसीआई के अध्यक्ष के नाते श्री वीके पॉल जी, डॉक्टर वीके
और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी जो निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, श्री चंद्रजीत बनर्जी महानिदेशक मुख्य रूप से भारतीय उद्योग परिषद और साथ ही निर्जा भाटिया जी और उपस्थित सभी CII के पदाधिकारीगण, आज इस एक बड़े सम्मेलन जिसको अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपने सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी आयोजन भरपूर रूप से इसका शुभारंभ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी करने वाले हैं और इसके साथ ही टीबी की वर्क प्लान का भी और पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट भी आपके CII का रिपोर्ट का भी जारी करेंगे जो एक प्रशंसनीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने के काम किया। आप सभी जानते हैं कि पिछले 6 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के स्वास्थ्य एवं हर प्रकार से कह सकते हैं हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए और देशवासी कम किफायती और सर्वसुलभ बेहतर स्वास्थ्य कैसे प्रदान हो, इसके लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए। 2017 की जो हमारी स्वास्थ्य नीति है, पहली बार 12 वर्षों के बाद सर्दार अटल जी की सरकार के बाद अगर स्वास्थ्य नीति बनी तो 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी को आधार मान करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मंत्रालय के द्वारा ये हमारी नीति निर्धारित हुई और कह सकते हैं इसमें कैसे बेहतर स्वास्थ्य प्रदान हो, इसके लिए प्रिवेंटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोमोटिव, पैलिएटिव और एफोर्डेबल हेल्थ केयर की जो कल्पना है उसको कैसे साकार किया जाए, तो दृष्टिकोण से स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार प्रयत्नशील है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पूरी तरह से कटिबद्ध है और दुनिया की सबसे बड़ी अनूठी स्वास्थ्य योजना जो विगत वर्षों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयुष्मान भारत के रूप में जो सफलतापूर्वक देश के 55 करोड़ आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसको लेकर के पूरे देश में आपने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने का काम किया है और बहुत सारे गरीब निर्धन ऐसे शुरू देहात में रहने वाले, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों ने सुविधा का पूरी तरह से लाभ उठाया है। और जहाँ तक आयुष्मान भारत का जो दूसरा पार्ट जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर देश के अंदर लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कई राज्यों में बीमारू हालात में, इलनेस हालात में उसको वेलनेस बनाने का यह काम प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत
में सौंपा है और आने वाले 2022 तक हमारा 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर बन जाएगा, जिसमें लगभग अभी तक 45,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं, जिसमें 12 प्रकार की जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई। हमारा जो दृष्टिकोण है कि मनुष्य का भगवान ने जो यह शरीर दिया है, ये शरीर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि शरीर मात्र खल धर्म शास्त्र, ये शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये भोगी के नहीं बल्कि क्योंकि शरीर का उपभोग करने के लिए बल्कि उपयोग शरीर का जितना अधिक हो सकता है उतना ही ये शरीर हमारे लिए सुंदर होगा। और इसलिए तो पुराने मान्यता के अनुरूप स्वास्थ्य जो मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा हो, भगवान ने क्षितिज जल पावन गगन सभी का पंच तत्व निर्मित किया अदम से। ये 5 तत्वों से निर्मित हमारा ये शरीर जो आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, इसके निश्चित से शरीर का निर्माण और पंच तत्व से निर्मित शरीर या पंच तत्व में ही निर्मित होता है। और शरीर का ठीक है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, किंतु जब तक ये शरीर है, शरीर को सुंदर रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। और भारत सरकार ने उसी उद्देश्य से जो WHO ने शायद नहीं कहा है और 2067 हो, हमारी परिकल्पना प्रारंभ से ही सर्वे पूरा सर्वे चुनाव है और इसी आधार पर हमने गाँव तक लोगों के अच्छे स्वास्थ्य कैसे हो सकते हैं इसकी चिंता क्या है। अभी वैश्विक महामारी के इस कालखंड में कोविड-19 के इस दौर में भारत ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और भी अधिक मजबूत बना दिया है, जिसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। आप जानते हैं कि इस कोविड के कालखंड में दुनिया में बेहतर प्रयास भारत में हुए हैं। हमने टेस्टिंग, ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट इन सबों पर पूरी तरह से बल देते हुए और अच्छे प्रकार से हम उस काम को कर रहे हैं। हमारी जहाँ तक स्थिति है कि अभी तक कई राज्यों में हम उससे बहुत अच्छे ढंग से निपट रहे हैं। कुछ राज्यों में कोविड भले ही ज्यादा हो, लेकिन वहाँ भी हमारी स्थिति बेहतर ढंग से समाप्त करने के लिए बना है। अभी हाल में ही 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किला के उस प्राचीन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में जो उसकी घोषणा करके शुभारंभ किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम। देश के प्रत्येक नागरिक का हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाए, हेल्थ आइडेंटिटी होगा और जिसमें मेडिकल संबंधित सभी प्रकार के रिपोर्ट भी और उसका सारा रिकॉर्ड दर्ज होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से मेडिकल रिकॉर्ड जो डिजिटल रिकॉर्ड पर आएगा, इससे चिकित्सकीय परामर्श लेने में पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगी। उसमें हर प्रकार के चिकित्सकों का, अस्पतालों का और जब भी जैसा भी लोगों की चिकित्सा हुई है उसका पूरा विस्तार से उस छोटे से कार्ड में वर्णन रहेगा। कहीं भी किसी को आवश्यकता पड़े एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने पर भी और आवश्यकता स्वास्थ्य परीक्षण का पड़े तो तुरंत भी उसकी देखभाल करके और उसका इलाज शुरू हो जाए। तो बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का विजन है। सब लोग इसका काफी लाभ उठाएंगे और सुदूर गाँव में भी रहने वाले लोग तो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत कम जागरूक है और न तो अपना स्वास्थ्य के बारे में कोई रिकॉर्ड अधिकांश लोग रखते हैं। तो इस डिजिटल
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से उनका जो हेल्थ कार्ड बनेगा वो बहुत ही उपयोगी होगा। मौजूदा समय में हमने देखा कि कहा टेलीमेडिसिन भारत के अंदर कह सकते हैं कि बेहतर रूप से काम कर रहा है। इस कोविड के कालखंड में अपने पहले में सरकार ने और मंत्रालय के द्वारा और टेलीमेडिसिन की सेवा को ओपीडी हमारा बहुत था, वहाँ टेलीमेडिसिन की सेवा उपलब्ध कराई गई और लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया और अभी अधिकांश जगहों पर टेलीमेडिसिन हमारे विभाग के द्वारा जो संजीवनी टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की गई है। कई राज्यों में इसका लाभ बखूबी लोग उठा रहे हैं। Finally, COVID-19 has made it clear that we will have to move towards low-cost quality care, rely on technology for virtual care, and encourage more and more home care. This requires greater investment, a new thought process, and out-of-the-box solution. The digital health mission announced by the Honorable Prime Minister will also be a big game changer, especially in terms of comprehensive care, and this will also empower our citizens to be responsible for their health. It will also, in my mind, become very useful when you look at non-communicable diseases. And the burden of disease has shifted now to more and more non-communicable diseases. And that is where digital health will actually be very, very useful. Preventive healthcare needs to become the new mantra, and I think we need to spend more and more. Also a need for the government and industry to work together to return to a sustainable growth path. As the Honorable Prime Minister has highlighted, this is not achievable without active partnership between the government and industry. To quote him, the private sector in India is a partner in ensuring India's growth. Develop concepts, think big, and together we can build a self-reliant India. Finally, COVID-19 has made it clear that we will have to move towards low-cost quality care, rely on technology for virtual care, and encourage more and more home care. This requires greater investment, a new thought process, को अपना उपस्थिति माननीय मंत्री जी का स्वागत कीजिए। कार्यक्रम का शुभारंभ में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि
आयोजन हो पाया है। और स्वागत के क्रम में मैं माननीय मंत्री जी को स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। कोई भी कार्यक्रम के शुभारंभ में हम दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, इसलिए मैं एवं इनको वो सामने आके दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम के शुभारंभ करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आके पंखा बंद करिए। आज भारत सरकार के एडिप योजना के अंतर्गत ये सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें मोटराइज ट्राइसाइकिल एवं बैसाखी इत्यादि उपकरण सभी दिव्यांग भाइयों को दिया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के एडिप योजना के अंतर्गत 25,000 की सब्सिडी भारत सरकार देती है और 12,000 की सब्सिडी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सांसद निधि से सहयोग दिया गया है, जिसके तहत हम आज आप सभी के समक्ष ये मोटराइज ट्राइसाइकिल वितरित करेंगे। इसी एडिप योजना का विवरण देने के लिए मैं निमंत्रित करूंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक माननीय श्री D.R. सरीन जी आगे हम सभी को अपना वाणी से संबोधन करें। जी हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका मैं इस प्रांगण में सोशल जस्टिस मंत्रालय के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करता हूँ, आप दिव्यांग जो आज के हमारे यहाँ अतिथि हैं, उनके प्रति हमारे मंत्री जी का बहुत स्नेह है। और इस समय कोरोना के चलते हुए भी उनको हमेशा दिव्यांगों के मन के प्रति उनका भाव रहता है। उसी के चलते आज से ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। 2-3 चीज़ें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 चीज़ों को उल्लेख करूँगा। एक तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जैसा मुझे याद है पोलियो एरेडिकेशन के लिए बहुत उल्लेखनीय काम किया और इंडिया में पोलियो को हटाने के लिए जो कार्य किया वो बहुत उल्लेखनीय है और अनपैरेलल है। दूसरी चीज़, जब कोरोना आया तो सब भारत की तरफ देख रहे थे कि किसने कैसा कोरोना को इंडिया कैसे निपटेगा, कैसे उसका समाधान करेगा। लेकिन आपके कुशल नेतृत्व से, आपके कुशल मार्गदर्शन से हमने देखा कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश ने प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में, आपके मार्गदर्शन में और सभी लोगों के मार्गदर्शन से हम इस कोरोना से लड़ पाए हैं और इसमें हमारी स्थिति आज बहुत अच्छी है। चौथी चीज़ मैं उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो चीफ उपस्थित हैं हमारे मंत्री जी, उनको मैं बताना चाहूँगा कि सर हमारे एक कॉक्लियर इम्प्लांट की स्कीम है। जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको हम 6 लाख रुपए का कॉक्लियर इम्प्लांट फ्री लगाते हैं भारत सरकार की योजना के तहत। और आज तक 3,000 लोगों को हमने इस तरह के कॉक्लियर इम्प्लांट लगाए हैं। इस
इस तरह की सभा में मैं इस चीज़ का जरूर उल्लेख करता हूँ, क्योंकि जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई बच्चे ऐसे हों जिनके जो सुनते ना हो, बोलते ना हो बचपन से, तो उनका रजिस्ट्रेशन आप मंत्री के किसी कार्यालय में जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, या हमारे यहाँ आके भी दे सकते हैं। हम ऐसे बच्चों का अब ऐसा ट्रीटमेंट हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट कि वो बोलने भी लगते हैं और सुनने भी लगते हैं। तो मेरा आग्रह है कि ऐसा कोई बच्चे आपके आसपास हो तो उसका एक आप प्रार्थना पत्र हमें दे सकते हैं। हम उनका कोशिश करेंगे कि उनका जल्दी से जल्दी जो है भारत सरकार की योजना के तहत जो है वो इलाज हो जाए। लास्ट में सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटराइज ट्राईसाइकिल जो है इसमें हमने बहुत सारे प्रदर्शन भी किए हैं और आपने निरंतर इनको बांटा है। इनकी सेफ्टी के लिए आज पहली बार दिल्ली में सर इनको सबको हेलमेट भी दिए जा रहे हैं, जिससे इन लोगों की सेफ्टी रहे। ये हमारे माननीय मंत्री जो थावरचंद गहलोत हैं उनके मार्गदर्शन में पिछले 6 साल में इस डिपार्टमेंट ने बहुत तरक्की करी है और हमेशा दिव्यांगों के प्रति जो है उनका ध्यान रहता है। और उन्होंने मुझे आदेशित किया कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये जब आप साइकिल रोड पे चलाएंगे तो आपको इंजरी हो सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बचाव के लिए हेलमेट दिया जाए। तो आज जो है ये हेलमेट हमारे मंत्री जी के मार्गदर्शन से भी आप लोगों को मिल रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं माननीय मंत्री जी का अगेन स्वागत करता हूँ और उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए हेल्थ सेक्टर में कोरोना की रोकथाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। बहुत ही विवरण से सर ने बताया कि माननीय मंत्री जी कैसे पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम का नेतृत्व करते हुए इस देश में, आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारा देश पोलियो से मुक्त हो चुका है। जोरदार तालियां बजा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं मैं। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान का भी चार्ज है। माननीय मंत्री जी हमारे पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं पिछले टर्म में, तो मैं माननीय मंत्री जी को इसी कड़ी में निवेदन करूँगा कि एक वृक्षारोपण करके इस ऑफिस को हमने अभी मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी हमें निर्देशित किए थे कि आईडीपी योजना के अंतर्गत उनके संसदीय क्षेत्र में पूरा कैंप आयोजित किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि हमने 6 से 7 कैंप लगा के उनके क्षेत्र में 4,346 लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं हम, और कुल लागत 5.26 करोड़ रुपए खर्च से हमने दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में सभी दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक, ऐसा कोई रहा नहीं जिनको सहायक उपकरण मिला नहीं। तो मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि वे आए और अपने पार्टी से आप सभी को अपना हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारीगण सभी यहाँ पर उपस्थित हुए पार्टी के और मेरे कार्यालय के संबंधित कार्यकर्ता, आज हम लोगों ने कोशिश किया कि यहाँ पे मिनिमम करोड़ एक लाइसेंस के लिए उन्हीं को यहाँ बुलाया जाए। ये कार्यक्रम में भीड़ भाड़ आपको सबकी सभी होती है, और सभी इसमें सामने जो हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे बहन, सभी लोग जो यहाँ पर हैं, ये मोटराइज
सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह समाज कल्याण मंत्रालय को इसके जो मंत्री हैं वो हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी हैं, गहलोत जी, उनको, उनके सभी अधिकारियों को और एलिम्को के सभी साथ के सभी साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज लगभग ये मेरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार चल रही है उस सरकार का ये 7वां साल है और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद लगभग 27 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। समाज कल्याण मंत्रालय जरूरतमंदों के हितों की रक्षा के लिए तो हमेशा काम करता है, लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ और बहुत गर्व के साथ ये दावा कर सकता हूँ, पिछले 7 सालों में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनको हम सब लोग गरीबों के, दिव्यांगों के मसीहा के रूप में पुकारते हैं, उनके इस कार्यकाल में जितने बड़े पैमाने पर समाज कल्याण विभाग ने भारत के अंदर काम किया है, इतनी बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को मदद की है और इस तरह के सहायता उपकरण जिनके माध्यम से उनके जीवन स्तर को बेहतरी प्रदान की जा सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। मैं उन सहायता उपकरणों का वर्णन यहाँ करने के लिए नहीं आया। आप सब एक मोटराइज्ड ट्राइसिकल के ऊपर बैठे हैं और इस बात की इस साइकिल पर बैठकर आपको स्वयं अनुभूति हो रही होगी कि आज के बाद आपके जीवन में कितना गुणात्मक परिवर्तन आने वाला है। इतनी संवेदनशील मंत्री, इतनी गहराई से सोचने वाले मंत्री कि सड़क पर चलते समय आपको कोई पीछे से टक्कर न मार दे और ऐसे में कोई चाहे छोटी मोटी दुर्घटना होने पर भी आपके सिर पर चोट लग सकती है और आपके सिर पर चोट लगने के कारण आपके प्राणों को खतरा हो सकता है, इस बात का भी कोई चिंता और सोच एक अत्यंत संवेदनशील मन ही कर सकता है। और मुझे आज बहुत खुशी हुई है देख के आप सब यहाँ पर आए हैं और सबके इस बाइसिकल के ऊपर एक हेलमेट चल रहा है। मेरा यहाँ एक तरफ मैं कामचंद गहलोत जी को धन्यवाद करता हूँ उनकी पहल के लिए, लेकिन आपसे भी हाथ जोड़कर एक विनती जरूर करता हूँ, ये हेलमेट ये शो के लिए नहीं है, ये आपके घर में शोकेस में रखने के लिए भी नहीं है। और जितनी भी सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, इतने सालों में जब हमने उनका विश्लेषण किया है तो हमने देखा है कि अधिकांश लोग जो सड़क पर दुर्घटना में मृत्यु का शिकार होते हैं, उनको बहुत जबरदस्त हेड इंजरी होती है और उनकी उस हेड इंजरी के कारण उनके जो ब्रेन को तकलीफ होती है, उसमें जो चोट लगती है, उसके कारण उनके प्राण चले जाते हैं। और अपने जीवन में
बहुत बड़ी संख्या में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका एक्सीडेंट तो बहुत भयंकर हुआ है, लेकिन हेलमेट के कारण और भगवान की कृपा के कारण उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है। मेरे को इस तरह का व्यक्तिगत अनुभव अपने परिवार के अंदर भी अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के साथ है, जिसके प्राणों की रक्षा केवल हेलमेट और भगवान की कृपा के कारण हुई। इसलिए मैं ये बात आपसे बहुत जोर से कहना चाहता हूँ कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो हेलमेट को अवश्य डालें। मैं वो सब आंकड़ों की यह चर्चा नहीं करना चाहता, कितने हमने कैंप लगाए, कितने हजार लोगों को अब तक सहायता उपकरण दिए, कितने रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन कैंपों के बनाए, और ऐसे ऐसे कैंपों में इतनी बड़ी बड़ी संख्या रही है कि वो खाली भारत के लिए नहीं, शायद वो संसार के अंदर आज कई तो रिकॉर्ड बन गए हैं सारे देश के अंदर, खाली मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं, लेकिन हमने अपनी कंस्टिट्यूंसी में ये संकल्प लिया था कि हम एक एक घर के अंदर ढूंढेंगे, कोई भी हमारा दिव्यांग भाई होगा, उसको किसी भी प्रकार के सहायता उपकरण की सहायता होगी, जरूरत होगी, तो उसको हम ढूंढ कर समाज कल्याण विभाग की सहायता से, और जहां पर आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आपके इस आज मोटराइज्ड व्हीकल्स को उपलब्ध कराने के लिए, तो वहां पर जितनी भी मात्रा में पैसे की आवश्यकता हमें हमारे डेवलपमेंट फंड के माध्यम से देने की जरूरत पड़ेगी, वो हम सब देंगे। अभी मेरे मन पर एक बोझ था, क्योंकि पिछले समय जब हम लोगों ने सर्वे किया तो उसमें करीब इस तरह के 250-300 लोग, उनको हम लोगों ने ढूंढा था, और फिर जनवरी के महीने में एक कैंप हम लोगों ने लगाया था, और उस कैंप के अंदर कुछ लोगों को इस प्रकार से मोटराइज्ड ट्राइसिकल दिया गया था। और उस समय जब वो कैंप लगा था तो आपके जैसे बहुत सारे लोग, उनकी औपचारिकता पूरी ना होने के कारण उनको ये मोटराइज्ड व्हीकल नहीं मिला था। जनवरी के महीने में 7 जनवरी को चाइना के अंदर कोरोना का पहला केस आया था। यद्यपि हमने जनवरी में ही 8 तारीख को कोरोना के खिलाफ भारत को अगर जरूरत पड़े तो कैसी लड़ाई लड़नी है इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, और उस लंबी लड़ाई में 20 जनवरी को भारत में पहला केस आया, और तब से ये लड़ाई लगातार चल रही है। आपने जाना है कि लाखों केस भारत में आ चुके हैं, लेकिन भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। हम थोड़े ही महीना पहले देश में 2000, 3000, 6000 इतने टेस्ट करते थे, आज हम 8 लाख से ज्यादा रोज टेस्ट कर रहे हैं। भारत में केवल एक लेबोरेटरी थी जांच की, आज 1470 से ज्यादा लेबोरेटरी है, और 135 करोड़ के देश में जहां इतनी प्रकार की विविधता है, और वहां पर हमारे जो केसों की संख्या है वो दुनिया के किसी भी पैरामीटर पर, दुनिया के किसी भी आंकड़े के हिसाब से जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं, प्रति 10 लाख केसेस में हमारे यहाँ कितने केस हुए, कितनी मृत्यु दर हुई, कितने टेस्ट हुए, इन सब बातों में हम दुनिया से बेहतर हैं। और मैंने जैसा कहा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चल गई और मेरे मन पर बोझ था कि मेरे वो भाई आपके जैसे
जिनको हमने जनवरी में ये वादा किया था कि आपकी औपचारिकता पूरी होते ही आपके लिए दोबारा हम थोड़े दिन में कैंप लगाएंगे, बहुत दिन से कोरोना के कारण हम इस कैंप को लगाने के समय को टाल रहे थे, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि किसी भी प्रकार का आप सब लोगों के लिए हम कोई खतरा बोल लें कि हम आपको बुलाएं, यहाँ पर कहीं पर भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी करें। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने ये हमें आश्वासन दिया कि थोड़े थोड़े करके इस कोरोना काल में भी हम थोड़े थोड़े लोगों को बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, जैसे मैंने देखा कि अभी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के मुंह के बीच में लगभग 1-1.5 गज 2 गज का फासला है। आप सब लोग बड़ी समझदारी के साथ मास्क को पहने हुए हैं और शायद भारत में हर व्यक्ति आज अपने आप को कोरोना के खिलाफ कैसे उसको बचाना है, दूसरों को भी, अपने परिवारजनों को भी। ये देश का गरीब से गरीब आदमी शायद औपचारिक तौर पर पूरी शिक्षा भी ना मिली हो तो भी वो सबके सब समझ गए। अभी तो अगर आप फासला ना बना के चले तो कभी कभी जो है देखने में जो कम समझ वाला लगता है वो कहता है कि आप जरा थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा फासला बना के रखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 गज की दूरी बना के रखिए। ये एक प्रकार का मैं सल्यूट करना चाहता हूं देश के 135 करोड़ लोगों को, क्योंकि ये हमने देखा कि शहर के लोग तो लापरवाही कभी कभी करते हैं, लेकिन हमारे गरीब लोग जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां की शायद फासला बनाकर रखना भी मुश्किल होता है, जो हमारे गांवों में रहते हैं, हमारे आदिवासी इलाकों में रहते हैं, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित हैं। इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन लोगों ने शहर के लोगों से ज्यादा समझदारी के साथ जो है उन्होंने अपना व्यवहार किया। और ये देखने में भी आता है कि आज देश में 80% से ज्यादा केस केवल देश के बड़े 10 स्टेट्स में हैं, और वहां पर भी जब हम आकलन करते हैं तो हम देखते हैं वो वहां के बड़े बड़े शहरों में। आपने देखा कि बहुत सारे स्थानों पर किस तरीके से लोगों के प्रयास से बीमारी को पूरी तरह से काबू करने के अंदर भारत को सफलता मिली है। इसलिए आज के इस अवसर पर एक तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जब तक कोरोना का प्रकोप दुनिया के ऊपर जारी है, तब तक अपने घर में जहां भी आप जाते हैं दूसरे क्या करते हैं उसको देखकर गलत चीज की कोई शिक्षा मत कीजिए। पढ़ा लिखा आदमी भी गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, कोरोना के समय जो अपेक्षित व्यवहार है उसको नहीं कर रहा है, उससे देखकर कोई प्रेरणा मत कीजिए। प्रेरणा लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने 3-4 बातें कही हैं, बार बार उसको इससे दोहराना चाहता हूं क्योंकि वो आपकी प्राण रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हर समय मास्क को जैसे आपने अभी लगा के रखा है, जैसे आपने देखा कि मैंने भी अपने नाक और मुंह को पूरी तरह से ढका हुआ है। बात करने के लिए भी और भाषण करने के लिए भी मैं इसको अपने नाक और मुंह से हटाना नहीं चाहता। दूसरा, आपने देखा कि ज्यादातर स्टेज के ऊपर लंबी लंबी कुर्सियां डली होती हैं, 10-10, 20-20 लोग स्टेज को सुशोभित कर रहे होते हैं। एक के बाद एक गुलदस्ते लेके लोग स्वागत की श्रृंखला के अंदर कंपटीशन करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कार्यक्रम के अंदर सिर्फ 2 कुर्सियां रखी हुई हैं। इसलिए रखी हैं कि कोरोना के काल में ये जरूरी है कि हम आपस के अंदर फैसला जो आपने दूरी है इसको बना कर रखें। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत लोग सैनिटाइजर 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 बोलते रहते हैं। इसको तो लेने में, उपलब्ध कराने में पैसा खर्च होता है, शायद हर एक व्यक्ति ले भी सकता है।
गरीब आदमी के लिए मैं खुद भी सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करता मैं, लेकिन अगर मैंने आज इसको छुआ है तो मैं अभी घर जाते ही सबसे पहले अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरीके से धोऊंगा। बस इतनी ही सावधानी मेरे लिए पर्याप्त है, और मैं इतना ही ध्यान करना मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं अपने हाथों को अपने मुंह के ऊपर, अपने नाक के ऊपर, अपने आँख के ऊपर ना लेकर जाऊं, क्योंकि ये वायरस ऐसा है, खतरनाक इसलिए है कि जरा सी बात पे मेरे से आप में चला जाता है, लेकिन एक प्रकार से शानदार इसलिए है कि छोटी छोटी 3-4 बातों का पालन करने से ये आपको जो है किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकता, आपके स्वास्थ्य की, आपके प्राण की अच्छी तरीके से रक्षा कर सकता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को कोरोना के खिलाफ मुझे क्या करना, अपने घर के लोगों को बचाने के लिए इस भाव के साथ यहाँ से लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे गरीबों के कल्याण के लिए, दिव्यांगों के कल्याण के लिए सोचते हैं। ये दिव्यांग शब्द 2014 के बाद भारत के लोगों ने सुना, जो प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा। आज से पहले किसी ने सुगम में भारत की कल्पना नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे विभागों में सारे अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जो भी दिव्यांग भाई है उसको अगर रेल में चढ़ना है, उसको प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसको ऑफिस में जाना है, उसको दुकान पे जाना है, कहीं जाना है, उसके हिसाब से भी सारी जो सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको डेवलप करना वो बहुत जरूरी है। और इसमें एक बहुत बड़ा मूलभूत चारों तरफ सोच में परिवर्तन आया, सारे वर्किंग में परिवर्तन आया। अभी आपने देखा सलीम साहब ने कहा कि पहली बार, क्योंकि मैं स्वयं नाक कान और गले का डॉक्टर हूँ और जिंदगी भर मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जो बच्चे गूंगे बहरे पैदा होते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्योंकि वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ना सुन पाने के कारण उनकी जो बोलने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं होती, और ऐसे मरीजों को सुनने की मशीन भी लगाते हैं तो शायद इतना लाभ नहीं होता। लेकिन पिछले सालों में एक ऐसा ऑपरेशन निकला है जिसमें ऑपरेशन करके कान के अंदर एक छोटी ऐसी मशीन लगाई जाती है जिसकी मदद से वो सुनना शुरू करता है तो फिर बोलना भी सीखता है। लेकिन इसका जब ऑपरेशन अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में होता था, उसमें 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तक खर्चा होता था। भारत में किसी ने सोचा नहीं कि जो गरीब आदमी का बच्चा भी अगर सुनने की कमी के साथ पैदा होगा तो वो उस ऑपरेशन को कैसे कराएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय किया, और आज जैसा अभी बताया गया कि जो वो कॉक्लियर इम्प्लांट है उसका पूरा का पूरा खर्चा जो है आज भारत सरकार का स्वास्थ्य, ये जो हमारा समाज कल्याण मंत्रालय देता है। और उन्होंने ठीक कहा सलीम साहब ने कि आपके आसपास भी कहीं कोई इस तरह के बच्चे, ऐसे परिवार हैं तो उसकी जानकारियां हम लोगों को दीजिए, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय में दीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के जो वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं उनको दीजिए, ये जो एलिनको और दूसरे हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी लोग हैं उनके दफ्तरों में दीजिए। अगर जानकारी हम लोगों तक पहुंच जाएगी तो ऐसे बच्चों के लिए भी कॉक्लियर इम्प्लांट की पूरी व्यवस्था करना, इसको हम अपना धर्म भी समझते हैं, कर्तव्य भी समझते हैं, जिम्मेदारी भी समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों की लगातार सहायता की गई है। पिछले 7 साल में लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में लगभग 50 से ज़्यादा मैंने ऐसे कैंप लगाए केवल, जिनमें लोगों के देखने की जो क्षमता है और जो सुनने की क्षमता है बुजुर्गों की, उसको जांच करके उनको निःशुल्क चश्मे और सुनने की मशीनें बंटवाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे कैंप लगाए जिसमें इस तरह के सहायता उपकरण जो है तरह तरह के हमने जो है अपने दिव्यांग भाइयों को या किसी भी प्रकार की जो कमी है उसको दूर करने के लिए लगाए। मैं आज के इस अवसर पर सिर्फ आपको
फिर से याद दिलाना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता के व्यक्ति हैं। गरीबों के प्रति उनका जो स्नेह है उसको हम लगातार पिछले 7 साल से देख रहे हैं। वो हर योजना को बनाने से पहले गरीब कल्याण के बारे में सोचते हैं। इतना बड़ा कोरोना का काल आया, लाखों करोड़ों के संख्या में गरीब लोग अपने अपने शहरों में फंस गए थे। उनका काम धंधा, रोज का रोजगार चौपट हो गया था। उनके लिए पेट भरने की सुविधा जो है समाप्त हो गई थी। लेकिन लगातार 6 महीने तक 135 करोड़ का देश है, लेकिन 135 करोड़ के देश में 80 करोड़ गरीबों को लगातार 6 महीने तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, उनको जो है हर प्रकार का राशन उपलब्ध कराना और उनके बैंक के खातों में सीधे सीधे पैसे सरकार की तरफ से भेजना, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी इस देश के अंदर सब गरीब लोग किसी भी प्रकार से तकलीफ में ना आए, जिनके काम धंधे कमजोर हो गए उनको तकलीफ ना हो, उसके लिए 20 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर भारत की योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे देश के अंदर जो है लागू किया। हम जानते हैं कि जब कोरोना आया तो 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और 1,70,000 करोड़ रुपया उसकी जो है उन्होंने गरीब कल्याण की योजना को घोषित किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए तुरंत सब प्रकार की दवाई हो, सब प्रकार की टेस्टिंग की किट हो, सारी चीजें उपलब्ध हो, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की तुरंत व्यवस्था की। ये सब चीजों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आपको भी इस बात का संज्ञान रहे कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक गरीबों का मसीहा और एक संवेदनशील मन वाला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके पास अभूतपूर्व प्रतिभा और क्षमता है, जो भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। वो भारत के एक एक व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है, जो भारत को एक नया भारत बनाना चाहता है 2022 तक, जो चाहता है कि भारत में हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटनी चाहिए, हर गरीब का दुख समाप्त होना चाहिए, हर गरीब के बच्चे को पर्याप्त स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, हर मेरी माँ और बहन की पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, हर मेरे बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए और भारत में केवल एक ही वाद पनपना चाहिए। वो कौन सा वाद है? वो है मानवतावाद और वो है राष्ट्रवाद। इसलिए ऐसे अनूठे, अनोखे, अद्भुत प्रतिभा वाले नरेंद्र मोदी जी को और समाज कल्याण विभाग के अपने मंत्री थावरचंद गहलोत जी को विशेष रूप से आज के इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। लिम्को का फिर से धन्यवाद करता हूं। थोड़े दिन के बाद जो और हमारे भाई जो बचे हैं जिनको कि हमें ये मोटराइज व्हीकल देना और जो हम कोरोना के कारण नहीं कर पाए उसको हम फिर एक छोटा सा इसी तरह का कार्यक्रम करेंगे, थोड़ी थोड़ी संख्या के अंदर इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सब भाइयों तक जिनको भी जो जो चीज़ों की जरूरत है वो हम कोरोना के बावजूद भी उपलब्ध कराएंगे। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान से आपके बेहतर जीवन के लिए, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और विशेष रूप से कोरोना की महामारी से रक्षा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विस्तार रूप से बताया कोरोना को कैसे भारत में अग्रणी देश होके मैनेज किया है और कोरोना से लड़के हम यही उम्मीद रखते हैं कि हम जीतेंगे। इसी के साथ टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लाभार्थी के साथ माननीय मंत्री जी हालचाल पूछते हुए मीनाक्षी को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल माननीय मंत्री जी के द्वारा वितरित किया गया। देवराज जी जिनको माननीय मंत्री जी के द्वारा उनके करकमलों द्वारा वितरित किया जा रहा है मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। देवराज जी जोरदार तालियों के साथ। हेलमेट लगा के जाना है बाहर आपके सामने। अभी किसी को टेक्निकली प्रॉब्लम होगी तो आप प्यारे प्यारे भक्तों, प्यारे प्यारे साधकों, मुबारके हमें कि हम तो नूर ही नूर हो गए। मुबारके हमें कि हम तो नूर ही नूर हो गए। गुरु के इतने पास हैं कि खुद से दूर हो गए, खुद ही से दूर हो गए। आपके लिए एक मैसेज है, निराकार का मैसेज, कि कल से Very few people have joined. ओके अब हम पहले अष्टावक्र जी का मैसेज सुनते हैं। दिव्यता से निराकार का मैसेज सत्संग में सुना जाता है। दिव्यता से हार्ट ओपन करके, श्रद्धा का कमल खोल के। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था ना आधी रात को, तो सारे कमल के पुष्प खिलने लगे।